Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में 17 और 18 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिया की जो कोल डिमांड है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट एनुअली टिल 2026। तो ऑन एन एवरेज पूछा गया कि 2026 तक जो इंडिया की कोल डिमांड है उसमें हमें कितनी बढ़ावा देखने को मिलेगी। तो अगर देखो, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, ये रिपोर्ट IEA के द्वारा रिलीज की गई। इंटरनेशनल आईईए क्या होता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट। और इन्होंने बताया कि इंडिया की जो कोल डिमांड है वो 2026 तक 3.5% से ग्रो करेगी एनुअली ऑन एन एवरेज, राइट। यहीं पर अगर देखा जाए 2023 में जो कोल की डिमांड है इंडिया में वो कितने परसेंट से बढ़ी, तो 8% यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिला 2023 में अलोन। यहीं पे अगर देखें तो IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। रिपोर्ट थी कोल 2023 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2026। यहाँ पे जो इंडिया की कोल डिमांड है, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 3.5% एनुअली टू 1397 मिलियन टन टिल 2026, ठीक है। एंड द कोल डिमांड इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव इंक्रीज्ड बाय 8% और 98 मिलियन टन्स, और जो ग्लोबल डिमांड है विल राइज बाय जस्ट 1.4% इन 2023। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया एट 7.8 to 8.9% ऑफ द GDP इन 2021-22 एज पर द डाटा रिलीज बाय NCAER's फर्स्ट ऑफिशियल लॉजिस्टिक एस्टीमेट। तो ये NCAER का भी लॉजिस्टिक एस्टीमेट रिपोर्ट आई थी, और इनके हिसाब से जो इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 7.8 से 9.8% रहता है ऑफ द GDP, राइट। यही अगर डाटा 2011-12 का देखें तो ये 8.7 से 9.9% के बीच में था, जिसमें अगर हम देखें तो वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू जो अभी है 2021-22 के लिए 7.8 से 8.9% के बीच, ठीक है। और देखो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जो एंड प्रोडक्ट होगा आपका उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जितनी कम रखी जा सके उतना बेटर होता है हमारी इकोनॉमी के लिए, ताकि जो हमारा जो फाइनल गुड्स है, जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा बेटर हो सके। इवन आपने देखा होगा कि जहाँ पे डिमांड होती है वहीं पर फैक्ट्रीज लगाने की बात की जाती है, ताकि प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कॉस्ट लगती है वो कम से कम खर्च हो। फिर यहीं पे आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसका एम क्या है? द पॉलिसी एम्स टू प्लेस इंडिया इन द टॉप 25 ऑफ द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय 2030, और ऑलरेडी इंडिया में अभी ग्रोथ देखने को मिला है ऑफ 6 पॉइंट्स, इंप्रूवमेंट टू 38 इन 2023। इट सीक्स टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड एनहेंस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। एंड जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है सॉ अ डिप ड्यूरिंग द 2014-15 से 2016-17 फ्रॉम 8.3 से 9.4 टू 7.8 to 8.8%,
राइट। और ये लॉजिस्टिक कॉस्ट में ग्रोथ था, ताकि जो फ्यूल प्राइसेस थे ना बेसिकली उनमें ग्रोथ देखने को मिला था, और उसकी वजह से यहाँ पे हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिला। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली 5,336 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस। आई रिपीट, अभी रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ताकि ये इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को प्रोक्योर करेंगे फॉर द इंडियन आर्मी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को कहां पर बनाएगी? पुणे महाराष्ट्र में बनाएगी। पुणे महाराष्ट्र में ये अब अपना एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं नागपुर में, राइटपुर नागपुर प्लांट ये सेटअप कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जो कि पुणे में रहेगा। वहां पर ये नए फ्यूजेस को फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस ये डेवलप करा जाएगा, राइट, इंडियन आर्मी के लिए। किसके द्वारा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, राइट। और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा? 5,336 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, और एक चीज और देखो, हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में ही हम ये जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो भी छोटा प्रोडक्ट हो चाहे बड़ा प्रोडक्ट हो, हम उसको इंडिया में ही ग्रो कर रहे हैं, इंडिया में ही डेवलप कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि हम चाहते हैं जो इंडिया की इंडस्ट्री है ना वो ग्रो कर सके। जो भी प्रोडक्ट हम बाहर से मंगाते थे वो बाहर से ना मंगा के हम उसको इंडिया से ही मंगा सके, ताकि इंडिया का ग्रोथ हो सके। जो पैसा हम बाहर भेजते थे वो इंडिया का इंडिया में ही रह सके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ रियो टिंटो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ इंडिया हैज अनवेल्ड अ कमेमोरेटिव स्टैम्प एंड अ कवर। तो याद रखेंगे 150 साल सेलिब्रेट करने के लिए ऑफ रियो टिंटो। रियो टिंटो क्या है? ये एक माइनिंग कंपनी है, राइट, ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी है। इसके 150 साल पूरे हो गए थे, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर अभी एक स्पेशल स्टैम्प एंड एक कवर को लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, राइट। तो मार्क करके चलेंगे। फिर कितने साल हो गए? 150 साल। तो ये बनी कब थी रियो टिंटो? 1873 में कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी TIW के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन सेंट लूसिया फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। TIW क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट। TIW के द्वारा कहां पर लोकेशन रहेगी? सेंट लूसिया। यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन UNDP, ये जो TIW ये क्या है? एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, राइट। इनके द्वारा मिलके ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका बेसिक एम क्या रहेगा कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको और बेटर करना। और इसी रीजन के लिए यहाँ पर अभी इंडिया को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया गया है, और यहाँ पर इंडिया प्रोवाइड कराएगा अपने टैक्स एक्सपर्ट्स फॉर 12 से 18 महीने तक इन दिस प्रोग्राम, राइट, जो कि सेंट लूसिया में लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा कि जो टैक्स को हम और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, कि लोग टैक्स इन्वेजन ना कर सकें, टैक्स से चोरी ना कर सकें, टैक्स बचा ना सकें, राइट। क्योंकि टैक्स एक हक होता है एक सरकार का सभी सिटीजन से लेना, ताकि वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, राइट। तो TIW जो कि है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट, UNDP एंड OECD के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। एंड इनके द्वारा ही यहाँ पर अभी एक सेंट लूसिया में प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है टैक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जहाँ पर इंडिया की हेल्प ली गई है टू बी देम एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नेक्स्ट 1 से 1.5 साल। नेक्स्ट KMBL, इन्होंने पार्टनर किया किच IIT के साथ टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो इंडिया का पहला स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? KMBL के। KMBL क्या है? कर्नाटका महिंद्रा और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, राइट। तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने किस IIT के साथ टाई अप किया? तो वो है IIT कानपुर, राइट। और ये पहला इंडिया का पहला स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी रहेगा। फिर पूछा जा सकता है इसका लोकेशन कहाँ पे बनाया जाएगा, ये कैंपस इसका पहले स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी का? तो IIT कानपुर के कैंपस में ही यहाँ पर इसको जगह दी जाएगी, एंड ये यहीं पर इसको सेटअप किया जाएगा एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, राइट। एंड ये जो KSS है कर्नाटका KSS जो कि है आपका कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, राइट। आप देखेंगे इस प्रोग्राम को फंड किया जाएगा अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कोटक महिंद्रा बैंक अंडर द प्रोग्राम कोटक कर्मा, राइट। कोटक कर्मा इसके अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ही यहाँ पर इस स्कूल को फंड करा जाएगा, राइट। तो याद रखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एंड IIT कानपुर, इन्होंने अभी पार्टनर किया टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी,
राइट, तो मार्क करके चलेंगे इसको। और कहाँ पर होगा ये? आईआईटी कानपुर के कैंपस में होगा, राइट। और किन दो के द्वारा? आईआईटी कानपुर एंड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। एंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस होंगी, जो भी ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे, वो आपको इस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर होगा कि कैसे हम अपने देश में सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, कैसे हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उन सारी चीज़ों पर यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर इसी की बात करें तो क्या काम रहेगा? टू प्रमोट पेडिग्री एजुकेशन, रिसर्च, आउटरीच बाय फोकसिंग ऑन एनहेंसिंग होम ग्रोन कैपेबिलिटीज टू एड्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी विल बी अराउंड 200 करोड़ रुपीज। कोटेक विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग 70 करोड़ रुपीज इन द फर्स्ट फेज। एंड KSS विल बी हाउस्ड इन अ ग्रीन बिल्डिंग, जो कि कहाँ होगा? IIT कानपुर के कैंपस में ही होगा। दिस विल बी अ प्लेटिनम रेटेड विद नेट जीरो प्रैक्टिसेस ऑन एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये अभी 2023-24 की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की गई है। और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? सॉवरेन का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी सरकार, राइट। ये इशू करे गए हैं अभी RBI के द्वारा। इसमें क्या होता है कि आप 8 साल तक यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं गोल्ड को। आपको फिजिकल गोल्ड का पोजेशन नहीं मिलेगा, आपके पास पेपर फॉर्मेट में होगा, राइट। एंड उस गोल्ड पर जितना भी आप यहाँ पे बॉन्ड परचेस करेंगे उस पर आपको 2.5% मिलेगा हर साल। और ये टैक्स फ्री होगा, टैक्सेबल होगा, सॉरी, राइट। ये 2.5% तो टैक्सेबल होगा, लेकिन 8 साल के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्स फ्री होगा, करेक्ट। जितने गोल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट होगी उसके हिसाब से आपको टैक्स फ्री रिटर्न यहाँ मिल जाएगा। एंड 2.5% तो आपको मिल ही रहा है। फिर इसी के अलावा एक और चीज याद रखेंगे कि जो आपका ये टाइम पीरियड है आपको 8 साल तक ही नहीं रखना, 5 साल लिमिट होती है, 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। फिर जो ये सीरीज 3 अभी लॉन्च की गई है ड्यूरिंग द पीरियड 18 से 22 सितंबर के बीच में, जिसकी सेटलमेंट डेट रहेगी 28 सितंबर। तो यहाँ पर देखेंगे जो इशू प्राइस आया है वो है 6199 रुपीज़ पर ग्राम। और यहीं पर RBI ने बोला कि अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, डिजिटल यहाँ पे प्रोक्योर करना चाहता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर, उनको 50 रुपये पर ग्राम यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया जाएगा, राइट। एंड इशू प्राइस फॉर गोल्ड बॉन्ड फॉर सच इन्वेस्टर्स जो ऑनलाइन डिजिटल मोड के थ्रू बाय करेंगे उनके लिए प्राइस इफेक्टिव प्राइस रहेगा 6149 रुपीज़ पर ग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। इन्होंने भी राइट ऑफ किया 10.42 लाख करोड़ रुपीस का बैड लोन्स को इन द लास्ट 9 ईयर्स। एंड इन्होंने जस्ट 15.45% की रिकवरी करी है, राइट। तो याद रखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक ने कितना हैज रिकवर्ड 1.16 लाख करोड़ रुपीज आउट ऑफ 10.42 लाख रुपीज, 42 लाख करोड़ रुपीज, मतलब जो सिर्फ 15.45% बनता है ऑफ द बैड लोन्स इन द लास्ट 9 ईयर्स, राइट। और ये जो बैड लोन्स क्या होते हैं? बेसिकली वो होते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, लोन ले लेते हैं लोग लेकिन उसको पे नहीं कर पाते, तो उनको NPAs कंसिडर किया जाता है, राइट। एंड इंक्लूडिंग दोज, ये याद रखेंगे आफ्टर 4 ईयर्स दीज आर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बैंक शीट ऑफ द कंसर्न बैंक। जो भी कंसर्न बैंक होगा उसकी बैलेंस शीट से ये बैड लोन्स को फिर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। तो अभी इंडिया की IIP हिट 16 मंथ हाई ऑफ 11.9% इन अक्टूबर 2023। आई रिपीट, इंडिया का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दे हैव इंक्रीज्ड टू अ 16 मंथ हाई मेकिंग 11.7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन अक्टूबर 2023 कंपेयर टू 6.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन सितंबर। ये था ड्यू टू द मेनली ड्यू टू द रोबस्ट परफॉर्मेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग 10.4%, इलेक्ट्रिसिटी 20.4% एंड माइनिंग 13.1% सेक्टर आउटपुट। ये जो रोबस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही है कंट्रीब्यूट करती है टू अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर 23-24 GDP। एंड जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट था ऑफ GDP डाटा आर एंटिसिपेटेड ऑन 5 जनवरी 2024 अहेड ऑफ द इंटर्म बजट। जो रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 5.5% की रहेगी इन नवंबर 2023। एंड ये रीजन क्या रहा है इसका? बिकॉज ऑफ द राइज इन द वेजिटेबल प्राइसेस, क्योंकि अभी सीजनल वेजिटेबल प्राइस राइज हमें देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन में भी ग्रोथ दिखा ऑफ 5.5%। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन के ऊपर। तो अभी 3 इंडियन आर्म फोर्स ऑफिसर्स को याद रखिए सम्मानित किया गया गोल्डन आउल अवार्ड से। गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के DSC-SC ग्रेजुएशन के दौरान ये सम्मानित किया गया। एंड ये जो गोल्डन आउल अवार्ड दिया जाता है ना, ये दिया जाता है जिनको भी दिया जाता है, बेसिकली ये सम्मान ये दर्शाता है कि ये ऑफिसर इज रेडी फॉर ज्वाइनिंग अ सीनियर पोजीशन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, राइट। एंड इनमें एक्सेप्शनल एनालिटिकल स्किल्स है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है एंड फ्यूचर लीडरशिप इसमें झलकती है। तो यहाँ पे गोल्डन आउल अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? पहले हैं
मेजर रोहित, राइट, ये इंडियन आर्मी से हैं। दूसरे आ जाते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सुनय शर्मा, राइट, ये इंडियन नेवी से हैं। एंड तीसरी पोजीशन पर आ जाते हैं आपके विंग कमांडर एस महाजन, राइट, ये इंडियन एयर फोर्स हैं। तो इन तीनों को यहाँ पर अभी गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय रनिल विक्रमसिंघे, जो कि प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ हैं ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हु हैज बीन स्worn इन एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के 14th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा जी, राइट, ये फर्स्ट टाइम एमएलए भी बने हैं भजन लाल शर्मा फ्रॉम सगनेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान, एंड ये 14th चीफ मिनिस्टर बने हैं राजस्थान के। अगर मैं पूछूं डेप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो दिव्या कुमारी एंड प्रेमचंद बरवा जी। आप यहां पर देख सकते हैं दिव्या कुमारी एंड प्रेमचंद बरवा जी यहां पर अभी डेप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, एंड यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन बने, वो है भजन लाल शर्मा जी, राइट। भजन लाल शर्मा ने किनको रिप्लेस किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर अशोक गहलोत को यहां पर रिप्लेस किया टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। और अशोक गहलोत जी 3 बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ऑफ राजस्थान। गवर्नर कौन रहेंगे राजस्थान के? कलराज मिश्रा। नेक्स्ट, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी अंडर प्रोजेक्ट घातक। तो आप ये देख सकते हैं एक हाई स्पीड फ्लाइंग विंग, राइट, इसका नाम दिया गया था, इसको क्या बोलते हैं हम? FWTD। FWTD क्या है? ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, राइट। ये जो यूएवी है इसको ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। और इस यूएवी को अभी टेस्ट किया गया डीआरडीओ के द्वारा। कहाँ से टेस्ट किया गया? लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, तो बेंगलोर कर्नाटका में एक डीआरडीओ की लेबोरेटरी है जो कि है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, कहाँ पर? कर्नाटका में, जहां पर इसको अभी टेस्ट किया गया था, राइट। ये जो आपकी यूएवी रहेगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये कार्बन फाइबर से बना है, तो ये काफी लाइट इन वेट रहेगा, बट ये काफी ज्यादा स्ट्रांग भी रहेगा। इसमें गगन जीपीएस यूज किया गया। गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ये एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रहेगा जिसको जीपीएस बोलते हैं, राइट। तो ये डीआरडीओ के द्वारा भी टेस्ट कराया गया था। इसको टेस्ट किया गया था कहां पर? बेंगलोर कर्नाटका में। फिर नेक्स्ट थिंग याद रखेंगे, ये जो डीआरडीओ है इनके चेयरमैन कौन है? वो है एसवी कामत जी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, एंड इसको 1958 में स्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, ये देख सकते हैं जो यूएवी है, इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। FWDD वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक प्रीमियर लेबोरेटरी है बेंगलोर कर्नाटका में, और यहीं पर इसको टेस्ट भी किया गया डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड का डीपेस्ट फिजिक्स लेबोरेटरी बिगैन देयर ऑपरेशन इन चाइनाज सिचुआन प्रोविंस। तो याद रखेंगे वर्ल्ड की जो डीपेस्ट एंड जो लॉन्गेस्ट आपकी डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजिक्स लेबोरेटरी है वो कहां पर है? चाइना में है। चाइना के कहां पर? सिचुआन प्रोविंस में रहेगी। तो चाइना हैज कमेंस्ड द ऑपरेशन ऑफ 2400 मीटर डीप फिजिक्स लेबोरेटरी, डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, जिसको DURF के नाम से जानते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, राइट। और ये कहां पर रहेगी? ये आपकी रहेगी सिचुआन प्रोविंस में, जो कि चाइना में है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद की एक हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड एक कंपनी है जो है HC रोबोटिक्स, राइट। HC रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अभी कोलैबोरेट किया फ्रांस की मैरियो के साथ। ये मैरियो क्या है? ये यूएवी पेलोड सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, राइट। तो यहाँ पर याद रखेंगे हैदराबाद की HC रोबोटिक्स ने मैरियो के साथ यहाँ पे टाइप करा ताकि एडवांस्ड गिम्बल्स को डेवलप किया जा सके फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आई रिपीट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एडवांस्ड गिम्बल्स को बनाने के लिए हैदराबाद बेस्ड HC रोबोटिक्स ने टाइप किया विद मैरियो, ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर आते हैं। तो याद रखेंगे 3 वीमेंस को अभी नेम किया गया एज द UWW राइजिंग स्टार्स ऑफ द ईयर 2023, और इनमें से आ जाती हैं इंडिया की अंतिम पंगाल, राइट। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। अंतिम पंगाल, जॉर्जिस ग्रीसे, हसरत जाफरॉफ, ये अजरबैजान से। तो ये 3 वो वीमेन हैं जिनको अभी लिस्ट किया गया है एज द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023। अंतिम पंगाल की अगर हम बात करें, ये 19 साल की हैं, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, राइट। एंड इनका जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा था इन हर वर्ल्ड
अंडर 20 चैंपियनशिप टाइटल इन्होंने 2 बार जीता, 2022 में एंड 2023 में अंडर 53 केजी कैटेगरी। एंड ये पहली इंडियन रेसलर बन गई हैं जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है मोर देन वंस। ठीक, नेक्स्ट तो ये तीनों ही नेम याद रखेंगे, इन तीनों को भी लिस्ट किया गया इन द नेम किया गया एज द UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट बात करें 53rd विजय दिवस की, तो 16 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं 53rd विजय दिवस। एंड विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन 16th ऑफ दिसंबर, ताकि इंडिया और बांग्लादेश में राइट हम जानते हैं कि 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी राइट, तो उसके ऊपर इंडिया की जो विक्ट्री थी ओवर पाकिस्तान, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम ये विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं। और इस साल 2023 में ये 53rd एडिशन था ऑफ द विजय दिवस जो हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, तो दोस्तों अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर जो आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे। जैसे इंडिया की जो कोल डिमांड है इट ग्रू बाय 3.5% एनुअली, इट विल ग्रो बाय 3.5% एनुअली टिल 2026 एज पर IEA। फिर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडिया में हम देख रहे हैं वो 7.8 से 8.9% के बीच में है फॉर 2021-22। ये डाटा NCAER की फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट रिपोर्ट में आया था। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5,336 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया BEL के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस। देन 150 ईयर्स ऑफ रियो टिंटो यहाँ पे सेलिब्रेट किए गए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, इन्होंने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प एंड कवर यहाँ पे लॉन्च किया इनके लिए। देन TIW ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम इन सेंट लूसिया फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिया को चूज किया गया एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन है। देन KMBL एंड IIT कानपुर इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। वेयर सॉवरन ग्रीन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें तो ग्रीन बॉन्ड्स नहीं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात करें तो ये 2023-24 के लिए लॉन्च की गई थी। सीरीज 3 हैज़ अनवेल्ड राइट, और यहाँ पे 2.5% का आपका एनुअल यहाँ पे रिटर्न मिलता है जो कि टैक्सेबल होता है। और अगर जब आप इसको 5 साल के बाद और 8 साल के बीच में कभी भी विड्रॉ कराएंगे तो आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा वो। देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने राइट ऑफ किया 10.42 लाख करोड़ रुपीस का लोन, बैड लोन इन द लास्ट 9 years एंड ओनली रिकवर्ड 15.45% ऑफ दोज बैड लोन्स जो NPAs होते हैं। देन इंडिया का IIP हिट एट 16 month हाई ऑफ 11.7% इन अक्टूबर, रिटेन इन्फ्लेशन राइजेस टू 3 month हाई ऑफ 5.5% इन नवंबर। और ये क्यों था? बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन द वेजिटेबल प्राइसेस। देन 3 इंडियन आर्म फोर्स ऑफिसर्स इनको गोल्डन लाउल से सम्मानित किया गया एट द श्रीलंका DSCSC ग्रेजुएशन रनिल विक्रम सिंघे के द्वारा। देन फर्स्ट टाइम MLA भजन लाल शर्मा इनको स्वॉर्न इन किया गया एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। देन DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया हाई स्पीड फ्लाइंग UAV अंडर द प्रोजेक्ट घातक। वर्ल्ड का डीपेस्ट फिजिक्स लेबोरेटरी बिगैन देयर ऑपरेशन इन चाइना सिचुआन। हैदराबाद HC रोबोटिक्स इन्होंने पार्टनर किया फ्रांस के मेरियो के साथ टू मेक एडवांस गिम्बल्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। देन इंडिया के अंतिम पंघाल अलॉन्ग विद हसरत एंड जॉर्जेस इनको नेम किया गया एज द UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023। एंड 53rd विजय दिवस की बात करें तो 13 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं विजय दिवस राइट, और ये 53rd एडिशन था इस बार 2023 में जो ऑब्जर्व किया गया। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ और रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 की। मतलब कौन सी सिटी बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है टू देयर सिटीजन्स, जहाँ पे लोग अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं राइट। तो वो कौन सी सिटी है? तो हम सबसे पहले अगर बात करें इंडियन सिटी यहाँ पे कौन सी रही जिसने टॉप किया, वो है हैदराबाद राइट। हैदराबाद तेलंगाना एमर्ज्ड एज द टॉप सिटी इन द मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग। और हैदराबाद याद रखेंगे 6th टाइम ये बेस्ट इंडियन सिटी का खिताब जीता इन्होंने, बेस्ट इंडियन सिटी राइट, 6ठी बार। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर मैं पूछूं ग्लोबली किसने यहां पे टॉप किया तो वो है वियना। वियना कहां की कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। इन्होंने सिक्योर किया टॉप पोजीशन फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव ईयर राइट। यहीं पर एक चीज और याद रखेंगे, हैदराबाद, पुणे एंड बैंगलोर इनकी रैंकिंग वाइज क्या रहेगी? अगर ग्लोबली इनकी रैंकिंग हम यहां देखें तो आपकी हैदराबाद 153rd पोजीशन पे, पुणे 154th पोजीशन पे एंड बैंगलोर 156th पोजीशन पे आ जाते हैं राइट। तो याद रखेंगे मर्सर के द्वारा ये क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग रिलीज की गई एंड यहाँ पर जिन्होंने टॉप किया ग्लोबली वो है वियना। फिर एक और चीज़ यहाँ पे अगर मैं मर्सर की बात करूँ
तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? मार्टिन फर्लैंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, एंड 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, अब यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रिया इसने टॉप किया फॉर द 11th टाइम, एंड फॉलोड बाय ज़ुरिक सेकंड पोजीशन पे एंड ऑकलैंड थर्ड पोजीशन पे। किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंजेक्ट किया 250 मिलियन डॉलर टू बूस्ट द इंडियाज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? देखो हम जानते हैं हम इंडिया में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है ना, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग आईफोन, अगर आपको याद हो, आईफोन की भी हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही स्टार्ट हो जाए। इवन टेस्ला से भी बात की जा रही थी। हम जानते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हम सेटअप कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंडर हमने जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सेटअप कराने की बात की गई और शुरू भी हुई। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एंड इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाएगा, करेक्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट में फिर हमें बाहर पे करना पड़ता है। इसीलिए अभी दो प्रोग्राम्स यहां पे हम देखेंगे। पहला प्रोग्राम है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया, दोनों प्रोग्राम बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ही रहेंगे। एंड पहला है जहां पे ये $250 मिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है इंडिया का उसको ग्रो किया जा सके, राइट। इससे क्या होगा, गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर जो हमारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोग्राम था उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा कनेक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी और लोगों को डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। फिर दूसरा आ जाता है कि यहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन इन्वेस्ट किया ताकि इंडिया को सॉलिड वेस्ट जो है, राइट, उससे छुटकारा पाया जा सके, उसको हमें कैसे प्रोसेस करना है उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके, एंड जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है एंड सैनिटेशन है उसके ऊपर वर्क किया जा सके, उसके लिए $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए। और हम जानते हैं इंडिया का स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 क्या है, टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री, और इसके लिए इन्होंने टारगेट सेटअप किया है इंडिया ने 2026 का कि हम सिटीज को गार्बेज फ्री बना देंगे 2026 तक, ठीक। तो ये आपका टारगेट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर किस बैंक ने अभी 70 मिलियन यूरो का एक लोन अप्रूव किया विद जर्मनीज KFC फॉर सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स। देखो सोलर पैनल्स बनाने के लिए ताकि फार्म्स इस्टेब्लिश किए जा सकें जहाँ पे जो एनर्जी है हम सोलर एनर्जी से, सन से जनरेट करें, सनलाइट से जनरेट करें, एंड हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेज पे शिफ्ट हो सकें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसी जनरेट कर सकें जो कि आपकी सोलर एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, ठीक। इसी के लिए SBI ने अभी 70 मिलियन यूरो का यहाँ पे लोन अप्रूव किया। जर्मनी की KfW ये कंपनी है जो कि सोलर PV प्रोजेक्ट, सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स, आपके पैनल्स ये सब डेवलप करती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन कम हो जाएगा क्योंकि अब तो सिर्फ सोलर एनर्जी से आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, राइट, इन द लॉन्ग रन, करेक्ट। और यहीं पे इंडिया का ये जो इनिशिएटिव लिया गया ना, याद रखेंगे इनकी जो डील हुई COP28 के दौरान हुई, और COP28 कहाँ पर हुई था, दुबई UAE में हुआ था अभी, राइट। चलिए अगर मैं SBI की बात करूं, चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे, चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड 1955 में इसको एस्टैब्लिश करा गया। KfW की मैं बात करूं तो स्टेफन विंटेल्स यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेडक्वार्टर रहेगा फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, एंड 1948 में इसको एस्टैब्लिश करा गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है विच बैंक एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ 2023 CAFI अवार्ड फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग बाय IFC। ये CAFI क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आई रिपीट, क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड, राइट। ये क्या है, बेसिकली क्लाइमेट रिपोर्टिंग के लिए कि क्या हम क्लाइमेट में कितना फंड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कितना पैसा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है ताकि वो अपना फंडिंग कर सके इन दीज क्लाइमेट इंस्टीट्यूशंस। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली कौन सा बैंक एमर्ज हुआ एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ 2023 CAFI अवार्ड फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग बाय IFC, जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे याद रखेंगे वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, अलुवा, केरला में, ठीक। और इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, एक है मोस्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड बैंक, किसके द्वारा वो रहा, कौन सा बैंक रहा विद द मोस्ट ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड, तो वो है इक्विटी बैंक। इक्विटी बैंक कहाँ का है ये इक्विटी बैंक, ये कीनिया का बैंक रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। पहला, द टर्म वकायामा सोर्यू दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज, ये क्या डिनोट करता है, राइट, क्या बताता है ये। दूसरा, SPECS स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री, ये SPECS जो स्कीम है ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, फुल फॉर्म क्या है
और क्या क्यों लॉन्च की गई थी ये स्कीम वो भी बताओ। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट कैपिंग ऑफ देयर बोरोइंग लिमिट बाय द सेंटर। चौथा, रिसेंटली आनंद मैरिज एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये राइट देता है टू द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू डैश। नेक्स्ट, हु इज द ट्रेजरर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ओवरसीइंग द राम टेम्पल प्रिपरेशंस। तो बताइए हु इज द ट्रेजरर हेयर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ओवरसीइंग द राम टेम्पल प्रिपरेशन, कौन रहेंगे। तो ये तीन आपके ये आपके 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर आपको ऐसा सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं डेली बेसिस पे हम ऐसा आपका सेशन लाते रहें तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.